I don't want to interrupt, so I'll just. Okay. So yesterday we have seen the mutual fund and we have done the few discussion on your like on the project group. Okay. So I hope like let me complete this 2-3 points and then later on also we will going to discuss about the project group, like who are all be supposed to be there in the group and what are all topics you all have decided. We will discuss on that. Okay. And then when exactly we have to start with the project work, that everything I will let you know. Fine. So now we'll start with the next point here, bank assurance. So what is bank assurance here? After first Narsimham committee report, Indian banking system gone through huge reform like merchant banking, lease and term finance, capital market, equity market, related activities, hire purchase, real estate finance, and so on. Few years back, Banks of India entered into another financial service known as insurance. Okay. So what are they saying? What are they saying here? Like after the Narsimham committee, Indian banking system has a drastic change. Like it has come with a very new concept of the banking. So it is not like only they were not doing only the traditional activities of banking, but the different one like merchant banking करना है, lease पे fund provide करना, मतलब lease पे technology देना है, then again what we can say term finance provide करना, capital market में, equity market में उससे related activities को perform करना. So this kind of all activity has been done by the all the banks. But later on, even the new services has entered into the Indian banking system, and that the name of that service is insurance here. Okay. So everybody know what is insurance, but we're going to see like what exactly they are trying to say through the bank assurance here. Okay. The business of banking around the globe is changing due to integration of global financial market, development of new technology, universalization of banking operation, and diversification in non-banking activities. Due to all this movement, the boundaries that have kept various financial services separate from each other have vanished. The coming together of different financial services has provided synergies in operation and development of new concepts. One of this is bank insurance. So what is bank insurance here? Bank assurance simply means selling of insurance product by bank. In this arrangement, insurance companies and bank undergo a tie-up, thereby allowing a bank to sell the insurance product to its customer. This is a system in which a bank has corporate agency with one insurance company to sell its product. By selling insurance policies, bank earns a revenue stream apart from the interest also. It is called as a fee-based income. This income is purely risk-free for the bank since the bank simply plays the role of an intermediary for sourcing business to the insurance company. See what they are trying to say here, like in like after Narsimham committee with the many changes, they have come with the new financial services, that was the insurance one. And then again they are saying ki, because of this new industrial policy, new economic policy, we have to compete with the global market. Okay. And for this kind of a global market, various banking and the non-banking activities were happen, and in that one they have decided to provide the insurance also. तो इंश्योरेंस बैंक प्रोवाइड करती है, तो उसको कहा जाता है बैंक इंश्योरेंस. ओके. When any insurance products are provided by the bank, so that is called as your bank assurance. अगर आप लोग LIC से ले रहे हो, so that cannot be called as the bank assurance. Okay. लेकिन अगर LIC जो फंडिंग दे रही है वो किसी मतलब बैंक के थ्रू दे रही है, LIC वहां पे किसी बैंक को बोल रही कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करो करके, then we can say it is coming into the bank insurance here. Okay. So in simple word, what is bank insurance? It means the selling of insurance product by a bank. तो यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, is it like basically created by the bank? No, it will not be created by a bank. It is basically created by the insurance company, and they will going to do the tie-up with the bank. वो बैंक के साथ tie-up करेंगे, so bank will going to act as an intermediary. बैंक का वहां पे कुछ ज्यादा रोल नहीं रहेगा, बस बैंक के पास कस्टमर ज्यादा रहते करके. So for that reason only the bank will going to act as an intermediary कि चलो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, if you are interested and you can take it here. तो जो लोग बैंक से इंश्योरेंस खरीदेंगे, तो वहां पे क्या होता है, बैंक को क्या बेनिफिट रहेगा, बैंक विल गोइंग टू गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, एंड इवन okay,
Bank can see the rate of interest also, and even the bank will going to earn the fee also. Fee based income मतलब क्या रहेगा कि जितना प्रोडक्ट वो ज्यादा सेल करेगा उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी will going to give them some payment also. So therefore this kind of a work is totally risk free for the bank, because bank is only acting as an intermediary. चलो अभी आप लोग जल्दी से मुझे बताओ, बैंक इंश्योरेंस मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन देता है? बैंक देगा या कोई इंश्योरेंस कंपनी देती है डायरेक्टली? हु विल गिव दैट? बैंक इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंक दे रहा है आपको, या फिर डायरेक्ट आप लोग किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कांटेक्ट में हो? व्हाट डू यू ऑल से? बैंक। हाँ, यस, बैंक दे रहा है। यस, बैंक इज प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। लेकिन बैंक वो अपने अकाउंट में से दे रहा है या किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट मतलब स्कीम सेल कर रहा है? व्हाट एग्जैक्टली? इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का वो स्कीम को सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक के लिए कोई रिस्क है क्या? बैंक विल गोइंग टू हैव एनी रिस्क कि लोग पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कोई रिस्क रहेगा बैंक को? व्हाट डू यू ऑल से? नो। नहीं, बैंक को कोई रिस्क नहीं रहेगा। उल्टा बैंक को क्या मिलेगा? जितना वो ज्यादा इंश्योरेंस स्कीम सेल करेगा उतना उसको फी मिलता रहेगा, उसका पेमेंट मिलता रहेगा। So this is what the bank insurance here. In India, bank insurance is a new buzzword in India. It originated in India in the year 2000 when the government issued notification under Banking Regulation Act, which allowed Indian bank to do insurance distribution. Okay, ये कभी से स्टार्ट हुआ बैंक इंश्योरेंस? दैट वाज फ्रॉम द ईयर 2000 when it was able to when it was possible, because when the government has issued a notification as per the Banking Regulation Act that bank can also distribute the insurance, at that time only it was decided. It started picking up after Insurance Regulatory and the Development Authority, that is IRDA. IRDA ये सबसे important होता है, and IRDA will going to मतलब जैसे बैंक के लिए कैसे आरबीआई रहेगा, वैसे सारे इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA will going to work out. Okay, so Insurance Regulatory and Development Authority passed a notification in October 2002 on corporate agency regulation. As per the concept of corporate agency, bank can act as an agent of one life and one non-life insurer here. तो यहाँ पे मतलब जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे बैंक को परमिट किया गया, बट इवन IRDA ने वहां पे उनको एजेंट जैसा काम करने के लिए अलाउ किया गया, बिकॉज इफ दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट तो उनको भी पेमेंट मिलेगा, सो दैट समहाउ द इंश्योरेंस सेक्टर विल गोइंग टू ग्रो. ओके, तो यहाँ पे IRDA इज अलाउिंग देम टू गेट द fee based income also for the bank if they are selling the insurance scheme. Then bank insurance provide various advantages to the bank, insurer and the customer. For the banks, income from bank insurance is the only non-interest based income. Interest is market driven and fluctuating and quite narrowing these days. Bank do not get great margin because of the competition. This is why more and more banks are getting into the bank insurance so as to improve their income. ठीक है, मतलब वो अभी इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है. इंटरेस्ट बेस्ड नहीं मतलब अब मार्केट अच्छा रहेगा तो ही उनको ज्यादा इनकम मिलेगा. सो दिस वे इन बैंक इंश्योरेंस बैंक को कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. उनको जस्ट सेल करना है इंश्योरेंस, IRDA बराबर उनको पेमेंट देता जाएगा. So therefore this is totally risk free and a kind of a source of income to the bank also. This is why more and more banks are getting into the bank insurance so as to improve their income. Increased competition also make it difficult for banks to retain their customer. Bank insurance comes as a help in this direction also. Providing multiple services at one place to the customer means enhanced customer satisfaction. For example, through bank insurance, a customer gets home loan along with the insurance at one single place as a combined product. Another important advantage is that bank insurance bring about in banks is development of sell culture in their employees. So you must be knowing, अगर आपके घर पे किसी ने होम लोन लिया रहेगा तो आपने एक चीज नोट किया रहेगा कि होम लोन तो हम लोग लेते हैं, ऑब्वियसली होम लोन हम लोग बैंक से लेंगे, लेकिन उसके साथ में आपने अगर घर लिया है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी निकालना कंपलसरी हो जाता है. ओके, तो व्हाट इज दैट हैपनिंग हियर, मतलब बैंक तो आपको लोन दे रहा है तो वो
इट इज अ काइंड ऑफ अ रिस्क फॉर द बैंक, ऐसे देखा जाए तो, कि पता नहीं आप लोग रीपेमेंट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन उसके साथ साइड बाय साइड बैंक इज ऑल्सो गिविंग यू द इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस निकालने के लिए भी बोलते हैं आपको। तो ये इंश्योरेंस अगर आपने निकाल लिया इंश्योरेंस, और इट इज, एंड आई थिंक दे हैव मेड इट वेरी कंपलसरी, आप कि अगर होम लोन ले रहे हो तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा करके, तो इट इज वेरी कंपलसरी वन। तो वो कंपलसरी करने की वजह से क्या होता है, इवन इंश्योरेंस कंपनी को अपना एक बिजनेस मिल जाता है, दे विल गोइंग टू गेट द मनी, एंड विद दैट हेल्प इवन बैंक विल गोइंग टू अर्न द payment, like as they are acting as an agent, they are providing, they are selling their insurance scheme. So this is what the bank insurance. So what do you all say, student? Bank insurance will be beneficial for the bank, or like bank should do it or should not do it? What is your point of view? बैंक इंश्योरेंस बैंक ने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? करना करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज उनको वो बेनिफिशियल रहेगा। एंड उसके साइड बाय साइड, as many people are like in connection with the banks only, so obviously the bank is the only source where the insurance companies can sell their products. Okay, so this is what all we can say about the bank insurance. So is it clear to you, student? Bank insurance, yes? समझा ना सब लोगों को? आपको सिंपल वर्ड में से पूछेंगे व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस, तो आपको बोलना आना चाहिए बैंक इंश्योरेंस इट मींस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस बाय द बैंक, ठीक है, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय द बैंक, इतना सिंपल वर्ड में बोलोगे तो भी वो बैंक इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि दो दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट बट दिस प्रोडक्ट आर नॉट theirs, okay, this product is of insurance company and here the bank is acting as an intermediary, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो तो वो क्लियर हो जाता है मीनिंग उसका। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, डिपॉजिटरी सर्विसेज। अ डिपॉजिटरी इज अ फैसिलिटी such as building, office or warehouse where something is deposited for storage or safeguarding. It can refer to an organization, bank or an institution that holds and assists in the trading of security. Okay, so that holds and assists in the trading of security. The term can also refer to a depository institution that accepts currency deposit from the customer. So depository services, it means what we can say, whatever money you are keeping into the bank, okay, as a deposit, so that is only for the safeguard purpose, मतलब वहाँ पे तुम्हें सेफ्टी रहेगा इसके लिए तुम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। The depository system will not only maintain the accounts of the shareholder, but will also undertake to collect the dividend, bonus share, etc. on behalf of the shareholder. What they are trying to say here कि depository services मतलब क्या, देखो उन्होंने और एक बताया कि it can refer to an organization, bank or an institution that hold and assist in the trading of security. मतलब depository services में बैंक या रहने दो या फिर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन रहने दो, वो पैसा तो आपका सेफ में रखेंगे लेकिन वही पैसा वो सिक्योरिटीज में भी डील करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको हमेशा बोलती कि जो भी पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं तो बैंक उसको एज इट इज अपने बैंक में नहीं रखता, बैंक उसको भी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करता ही है। ओके, तो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके थ्रू उसको रिटर्न मिलता रहता है, सो दैट पे वी कैन से, लेकिन अपना पैसा सेफ रहेगा, भले बैंक लॉस में रहेगा, मतलब हमारा पैसा वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा अगर उसको वहां पे उसके थ्रू ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिला, तो still it will be the responsibility of the bank कि जो उसने हमें प्रॉमिस किया है कि लाइक आफ्टर दिस पर्टिकुलर year of deposit you will going to get this kind of amount, तो उसको वो देना ही पड़ेगा। ओके, then depository system will not only maintain the accounts of the shareholder but will also undertake to collect the dividend, मतलब ये जो depository system है इसमें इवन तुम लोगों का जो डिविडेंड बोनस शेयर जो भी रहेगा दैट आल्सो विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द shareholder. Periodically the shareholders will be informed of their holdings by a depository agent through a statement of account. Yes, any sale or purchase of shares will take place through the depository. The use of electronic system in the transfer of share is an important aspect of depository system. उन्होंने कहा है कि डिपॉजिट जो भी हम लोगों ने रखा है उसके थ्रू जो भी ट्रेडिंग वगैरह हुआ है उसका पूरा डिटेलिंग भी हम लोगों को मिलता है कि कहाँ पे ट्रेडिंग किया गया, मतलब अगर हम लोग उस पर्पज से रख रहे तो ठीक है, तो वो पूरा डिटेलिंग भी हम लोग को मिलेगा कि हमारा जो भी पैसा था वो कहाँ पे ट्रेडिंग किया गया, उसके थ्रू हमें कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना रिटर्न मिला है,
that all kind of a statement will be provided to you by your agent, by your depository agent. ठीक है. इवन अगर आप लोगों ने एक चीज नोट किया रहेगा कि अगर सपोज इफ यू आर नॉट अवेयर कि शेयर मार्केट में कैसा ट्रेडिंग करना है, क्या करना चाहिए, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब वो परचेस एंड सेल वाला एक्शन लेना चाहिए, अगर आपको ये आइडिया नहीं रहता है, सो दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन अपॉइंट वन ऑफ द एजेंट, और वो एजेंट का कुछ ज्यादा फी नहीं रहता है, वो जितना हम लोगों को रिटर्न मिलता है उसका कुछ परसेंटेज उसके पास जाता है. ठीक है. लेकिन वो हमें बोलेगा कि ये इतना इतना 2-2 हजार रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते जाओ करके, मतलब वो उसके पास जाएगा. और फिर बाद में जो भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं कि 2 हजार रहने दो महीने का या फिर 3 हजार रहने दो, वॉट एवर, दिस इज ऑल अबाउट with like this will all depend upon your income कि आपको कितना महीने का इन्वेस्टमेंट करना है करके. तो जैसे वो एवरी ईयर का डिसाइड करेगा, नहीं सॉरी एवरी मंथ का डिसाइड करेगा कि 2-2 हजार रुपए में आप डिसाइड करोगे कि 2-2 हजार रुपए में इन्वेस्ट करूंगा करके. तो 2 हजार रुपया वो एजेंट के पास जाएगा, वो एजेंट उसको क्या करेगा, उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करता रहेगा. और वो इन्वेस्ट होते होते आपको वो हमेशा स्टेटमेंट भी दिखेगा कि आपका पैसा अभी कहाँ पे लगाया गया है और कितना उसका रिटर्न आपको मिल रहा है करके. So that everything will be done through this depository agent, and depository services will going to help you in this. Then what are the benefits of depository system? It acts as a collateral security for the raising of loans from any financial institution. मतलब अगर हम लोग ऐसे depository system रखते भी है किसी बैंक में वगैरह, तो उसी बैंक से अगर हमें कोई लोन की जरूरत मिलती है, so that deposit amount will be considered as a security also. जैसे देखो मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि अगर आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट का पैसा है, सपोज 25 लाख का आपके पास डिपॉजिट है, लेकिन आपको एक घर खरीदना है वो 50 लाख का है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसका रेशियो रहता है, लेकिन वो रेशियो मुझे पता नहीं कितना रहता है. अगर आपको उससे ज्यादा अमाउंट वाला घर खरीदना है, लेकिन आपको आपके 25 लाख भी मतलब वहां पे खर्चा नहीं करना है, 25 लाख एज इट इज रखने चाहिए बैंक में, और आपको पूरी तरह से सपोज 40 लाख का लोन का जरूरत है, तो यू कैन आस्क द बैंक टू गिव यू द 40 लाख लोन. तो 40 लाख लोन में से भी क्या रहेगा कि जो 25 लाख आपका डिपॉजिट है वो एक सिक्योरिटी के जैसा काम करेगा कि ठीक है इसके पास 25 लाख तो है, तो वो एक सिक्योरिटी रहेगा बैंक के पास, अगर इसने नहीं रीपे किया तो 25 लाख विल बी देयर विद देम. ठीक है. वो होने के बाद में इवन जो उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा 25 लाख का, जो बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट देती थी एवरी मंथ का, तो वो इंटरेस्ट अभी नहीं देगी, उल्टा तुम लोगों का जो एडिशनल अमाउंट रहेगा, मतलब जैसे तुम लोगों ने 40 लाख का लिया तो 15 लाख का जो एडिशनल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा और उतना पैसा आपसे लिया जाएगा. तो मतलब एक बात तो ऐसी हो गई कि चलो आपको 40 लाख तो मिल गए हैं, लेकिन 25 लाख तो आपके एज इट इज है बैंक में, और ऊपर से जो ऊपर का 15 लाख है उसके ऊपर ही आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो करके. So this way it will going to act. So therefore, sometimes depository services will going to act as a collateral security for raising the loan from any financial institution. Then it enables speedy transaction and accuracy. Yes, because it totally electronic system रहता है, मतलब जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड वगैरह कहीं पे इन्वेस्ट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है करके. So it will have the speedy transaction and the accuracy also. The security holders can sell and buy securities by which the liquidity is brought to the security. Yes, वहाँ पे जो security holders रहते हैं वहाँ पे selling and buying of securities होता रहता है करके, securities में transaction हो रहा है, therefore we can say that there will be liquidity in the securities. Then bank transfers are avoided and holding of shares in another name is also prevented. Okay. The registration and stamp charges for the sale of security could be easily collected by the government by the help of the bank. Depository promotes more activity in the capital market as trading in genuine share. Okay. Then depository avoids use of stationery and prevent delay in registration of transfer. Dividend and interest on security are properly distributed through this system, and in the case of convertible debenture on the due date, the securities are converted into company shares. So what you understood your depository services, it means what this will going to keep your money into the safe into the at a safer place. Then again your money will going to have the higher interest, because that money, whatever money you have deposited, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी सिक्योरिटीज में डालना है, कैसे हायर रिटर्न मिलेगा,
वो सब काम आपका डिपॉजिटरी एजेंट करेगा. देन लेटर ऑन व्हाट वी कैन से, it will be so transferable. Why it is so? Because everything, whatever transaction activity is happening, it is all happening to the electronic transfer. So therefore it will be the updated one कि आज सुबह क्या रेट था, आज सुबह कितना रिटर्न आया, ओके दोपहर को कितना रिटर्न आया. सो दैट वे यू विल गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन कि तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है करके. Okay, and then again it will be, the best part is what, like whatever money you are depositing, so that will going to act as a security to you also, because whenever you are in the needs of any money or any kind of a loan, तो उसके लिए वो तुम्हें help करेगा. So these are all the benefits of depository system. But what you understood here, depository system में जो भी मतलब पैसा deposit किया जा रहा है, so that will be basically invested into the share market. ओके तो ये शेयर मार्केट के लिए भी बेनिफिशियल होता है. मतलब यहाँ पे सेबी के लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज पीपल हैज टू ट्रेड इन द सिक्योरिटी. इफ दे आर नॉट ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी, तो मतलब वहाँ पे उनका डिमांड कम हो जाता है. सो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी. सो दिस काइंड ऑफ अ सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इज हैपनिंग. ओके so these are all the advantages we can say for the depository services. Is this clear to you student? समझा आपको? तो अभी मुझे पहले ये बताओ, डिपॉजिटरी सर्विसेज में पैसा किसका जा रहा है, हमारा जा रहा है या बैंक का जा रहा है? कौन डिपॉजिट कर रहा है उधर? पीपल आर डिपॉजिटिंग या बैंक वो इन्वेस्ट, मतलब बैंक अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है? व्हाट डू यू ऑल से? People. यस, लोगों का पैसा बैंक के पास जा रहा है, वो हमारा पैसा जा रहा है मैम. यस हमारा पैसा जा रहा है. ठीक है. देन अगेन ट्रेडिंग करना है, तो वो ट्रेडिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज के थ्रू हम लोग ट्रेडिंग करेंगे सिक्योरिटीज में, या फिर वो एजेंट, डिपॉजिटरी एजेंट ट्रेडिंग करेगा? एजेंट. यस, एजेंट विल गोइंग टू डू द ट्रेडिंग हियर. तो एजेंट ट्रेडिंग करता है, लेकिन वो हमारा पैसा है और हमारे पैसे के पैसे का यूज करके वो ट्रेडिंग करता है. तो लाइक आपको ऐसा लगता है कि कुछ वहां पे बेनिफिट होता रहेगा आप लोगों को? वी फील सो कि बेनिफिट? यस मैम, यस, इंटरेस्ट मिलता है. हाँ यस, इंटरेस्ट मिलता रहेगा. ठीक है, वी विल गोइंग टू गेट द इंटरेस्ट एंड इट मींस व्हाट, अपना पैसा भी वहां पे इंक्रीज होता रहता है. लेकिन ये कुछ ऐसे महीने के बाद में वो लोग स्टेटमेंट देते हैं, और कभी भी आपको जरूरत है तो आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा. व्हाट डू यू ऑल से? यू कैन सी इट वेन एवर यू वॉन्ट इट, या फिर एक महीने के बाद में आपको इतना रिटर्न आया करके वो बताएगा? क्या समझा आपको? बताओ मुझे. जो भी रिटर्न मिला है आपको, जो भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है, उसका कितना रिटर्न मिला है वो आपको एवरी मंथ का स्टेटमेंट में मिलेगा, या फिर आप एवरी डे पे भी देख सकते हो? ये मेरा क्वेश्चन है. एवरी डे पे मैम. हाँ, एवरी डे पे भी आप वो देख सकोगे. ठीक है, वेरी गुड. तो अगर आपके पास ऐसा डिपॉजिटरी सर्विसेज का अमाउंट रहेगा, तो ये अगर और आपको और किसी पैसे की जरूरत है, तो आप वो डिपॉजिटरी सर्विसेज के अगेंस्ट ले सकते हो क्या? पैसा क्रेडिट ले सकते हो बैंक से? यस और नो? यस मैम. यस, यू कैन टेक इट. ओके, और आपने क्या चीज नोट किया यहाँ पे, डिपॉजिटरी सर्विसेज में जो भी पैसा बेसिकली ट्रेडिंग किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो तुम्हारा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है? कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में? कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है ज्यादा? इज इट इन द कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट? बोलो. मैम मनी मार्केट. मनी मार्केट. Why you are saying it is in the money market? Why not in the capital market? Yes. किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि ये मनी मार्केट में आएगा? क्योंकि मनी मार्केट में मैम शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है. एंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म. बट दिस इज डिपॉजिटरी सर्विसेज. तुम लोग शॉर्ट टर्म मतलब वहां पे ऐसा नहीं रहता है ना कि आपने एक महीने के लिए डिपॉजिट कर दिया, वहां पे एक पीरियड तक तुम लोग को डिपॉजिट करना ही पड़ता है. इफ यू डिसाइडेड कि नहीं मैं 2-2 हजार रुपये डालूंगा इतने सालों तक के लिए, तभी वो पैसा वहां पे यूज किया जाता है. यू कैन नॉट गिव दैट डिपॉजिटरी मनी फॉर 1 मंथ एंड देन यू विल गोइंग टू बी रिलैक्स. ऐसे नहीं रहता है. एवरी मंथ वी हैव टू डू द डिपॉजिट, तभी वो वहां पे ट्रांजेक्शन करते हैं. सो बेसिकली इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म ओनली. ये जनरली कैपिटल मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाता है, एज इट इज डीलिंग विद द शेयर मार्केट एंड ऑल. सो दैट विल बी, मतलब वो लोग वहां पे वो शेयरिंग करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो क्या हो जाता है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना जैसा हो जाता है. सो दे आर डूइंग द मोर एक्टिविटीज इन द
capital market as compared with the money market. Okay. Then again यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहता है सिक्योरिटीज का, तो ये जो इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट आप लोगों को मिलता है, तो ये वाला इवन वी कैन से डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट जो आपको सिक्योरिटीज में मिलेगा, तो उसका कुछ बेनिफिट डिपॉजिटरी एजेंट को जाएगा या पूरा का पूरा आपको ही मिलेगा? एजेंट को क्या फायदा है, मेरा ये क्वेश्चन है। मतलब वहाँ पे वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन उसको उसका क्या बेनिफिट है? उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस, विल ही? मैम मिलेगा यस, ही विल। मतलब ओके, डिविडेंड पे। उसका रेशियो इतना ज्यादा नहीं रहेगा, बट स्टिल जैसे कि वो अभी वो हमारे अकेले के लिए तो काम नहीं कर रहा है ना, उसके साथ में ऐसे बहुत सारे कस्टमर रहेंगे, तो हर एक का थोड़ा थोड़ा रेशियो करके उसका भी वो बेनिफिट जाता है करके इज बेसिकली एक्टिंग फॉर एन एजेंट टू अस। ओके, so this is all about your depository services. Okay, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। वेल्थ मैनेजमेंट एंड ऑल दिस पॉइंट विल बी गोइंग टू सी इट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तुम लोग मुझे बताओ कितने लोगों का प्रोजेक्ट का तैयारी हो चुका है, मतलब तैयारी हो चुका है इन द सेंस कि ग्रुप फॉर्म हो चुका है या फिर टॉपिक डिसाइड हो चुका है। तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देती हूँ। आलिया, टिल दैट टाइम यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अगर अपना टाइम चला जाएगा तो फिर हाँ, यस बोलो स्टूडेंट, कितने लोगों ने अभी और ग्रुप फॉर्म किया है क्या? किसी ने नहीं किया अभी तक, या जो पहले कल के दिन हम लोगों ने जो देखा था वही था? कितने लोग हैं? वेट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Okay, can you see the screen, student? See, यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप था निधि का, they have taken the role of IT in banking. रीना, कुछ हुआ डिसाइड आपका ग्रुप का टॉपिक? रीना, रेनू, शीतल, कविता, any topic you have decided? आलिया के ग्रुप का कुछ हुआ डिसाइड? नहीं मैम। नहीं हुआ, ओके। देन आरती? मैम म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड पे करेगी आरती, ठीक है, चलो। यस मैम। गुड टॉपिक। और नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है? हाँ, अमित का तो हो गया म्यूचुअल फंड, ठीक है, इनका म्यूचुअल फंड भी चला गया अभी। हाँ, म्यूचुअल फंड चला गया है। अभी और दो ग्रुप का बाकी है, बाकी लोग का मैं देखता हूँ अभी कितने पेंडिंग है। निकिता 1 2 3 4 5 6 7, then 8 9 10 11 12 13 यस, तो किसका आ रहा है? तनवीर, ओके। 24 लोगों का अभी भी पेंडिंग है। 24 लोगों को फिर ग्रुप बनाना है। 24 में से अगर किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो मैं बना दूं तुम लोगों का ग्रुप? व्हाट डू यू ऑल से? यस, डाली, रोहिदास, डाली इज देयर, ओके। मैम हम बनाया है ग्रुप आपने? 4 मेंबर है। नहीं समझ रहा है 4 डाली? मेंबर है मैम। 4 मेंबर, हाँ चलेगा, बोलो ना, नाम बोलो, हम लोग बाद में देखेंगे किसको वहां पे ऐड करना है करके। बोलो आपके ग्रुप में कौन कौन है? ओके, यू आर देयर। और कौन है बोलो? मनीषा पूरी। मनीषा की, ठीक है, रुको, ठीक है, डाली, मनीषा पूरी, रोल नंबर 31 मैम। 30, मनीषा पूरी। ओके ओके, मनीषा का हो गया है। निक्की तिवारी मैम 48। ओके, वेट, निक्की का रोल नंबर क्या है? 48 मैम। 48, ओके। और बोलो। और मरियम मैम। मरियम, मरियम हाँ उसका रोल नंबर बोलो।
सैयद ना, सैयद मरियम। वेर इज, हाँ ये मिला मुझे। यहाँ पे है ना ऐसा दिख रहा है, पार्टिसिपेंट कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन। क्या दिख रहा है आप लोगों को, मतलब एनीथिंग एल्स, कुछ नया आज? मुझे नो तो, मैम। हाँ मुझे से जूम में आ रहा है करके मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ आया था कि अपडेट करो, तो मैंने अपडेट पे डाला तो मुझे बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके, सो तुम लोगों का चार लोगों का ग्रुप हो गया, तो तुम लोगों को एक और चाहिए। ओके, ये टॉपिक यू हैव डिसाइडेड डार्लिंग? तो टॉपिक, Yes, ma'am. हाँ टॉपिक को डिसाइड किया निकी? Yes, ma'am. Overview of banking industry, ma'am. पूरा कवर करेंगे ओवरव्यू all the ऑफ topics. बैंकिंग इंडस्ट्री। लेकिन अच्छा, तो अवंतिका तुम लोग बेसिक ऑफ बैंकिंग में क्या बताने वाले हो? यस अवंतिका, अवंतिका इज देयर? हाँ यस मैम। अवंतिका, तुम लोग क्या दिखाने वाले हो बेसिक ऑफ बैंकिंग में? मैम कॉन्सेप्ट होगा, मतलब फंक्शंस होंगे। और तुम डाली, तुम लोगों का क्या प्लानिंग है? और ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री में तुम लोग क्या बताओगे? मैम इसमें हम सब कवर करेंगे, मतलब इंश्योरेंस के बारे में, और जो भी कभी बैंक्स कब फॉर्म हुए थे मैम, एंड जो जो भी रहेगा मैम सब कवर करेंगे। एक्ट्स, तो एक्ट है, एंड कभी मतलब ये आया था बैंकिंग इंडस्ट्री। अच्छा वैसा वाला, ठीक है। तो तुम लोगों का अभी टॉपिक हो गया ना? बाकी और किसी को बोलना है? किसी का ग्रुप फॉर्म हुआ, क्या करना है? यस, कोई नहीं? ठीक है, तो फिर मैं अभी तुम लोगों का ग्रुप फॉर्म करके देती हूँ। ठीक है, निकिता इज देयर? निकिता नो मैम, शी इज नॉट देयर। इज नॉट देयर, ठीक है। लेकिन ओके, यहाँ पे रोहिदास, ओमकार, विनय, खान अली अब्बास, इसमें से कोई है? रोहिदास, ओमकार, विनय, अली अब्बास, कोई है इसमें से? आलिया दिख रहा है क्या कोई? मैं कोई ग्रुप में नहीं हूँ। हाँ रुक ना, मैं लेती हूँ तुझे ग्रुप पे बराबर से। अच्छा वसीम है, वसीम, वसीम इज देयर? खान हाँ वसीम, वसीम किधर है? वसीम बोलो। यस मैम। हाँ वसीम, ओके ओके। वसीम, मैं तुझे ये वाला, मतलब आई थिंक यू वर देयर इन द 21 to 30 ग्रुप में शायद से, ठीक है? तो तेरा हाँ 31 का मैं तुझे 5 लोगों का यहाँ पे लिख के देती हूँ कि कौन कौन तेरे ग्रुप में रहेगा, तो तुझे पॉसिबल रहेगा इन लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए। देखो, वसीम एक यस चाहिए, मैम। सूरज इज देयर, मल्ला सूरज, सूरज इज प्रेजेंट नाउ। कौशिक, कौशिक है? कौशिक भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, मोमिन, साफिया, साफिया इज देयर? अरे रोहिदास है ना, रोहिदास बात क्यों नहीं कर रहा है? रोहिदास का भी ग्रुप बनाना है। मैम गूंगा है वो। गूंगा हो कुछ भी? हाँ, देन ओके, आदित्य इज देयर? आदित्य धनवारे, आदित्य, आदित्य भी नहीं है। विमलेश, पाल विमलेश, पाटिल प्रियंका, इनमें से कोई है? विमलेश, पाटिल प्रियंका, दोनों में से कोई है इधर? आई थिंक प्रियंका वैसे हमें, प्रियंका इज ऑलवेज रहती है ना आलिया? प्रियंका मेजोरिटी टाइम वो प्रेजेंट रहती है। यस मैम। हाँ ठीक है चलो, फिर मैं ना इसको बता के रखती हूँ, फिर इनका ग्रुप अपने वसीम को बता के रखती हूँ। वसीम, मैं तेरा ग्रुप फॉर्म कर रही हूँ। तेरे ग्रुप में कौन कौन रहेगा? यू, नाम लिख के रखा, सूरज, देन कौशिक, देन टेक आदित्य, एंड देन विमलेश। चलेगा वसीम? मैम मेरा भी, मैं कौन से ग्रुप में? तन्वी रुक ना, तुम लोग का ग्रुप बनाती है ना, मैं रुक थोड़ा। वसीम, तू अपने ग्रुप मेंबर्स का नाम लिख के रखा, और उनके साथ में फिर जितना ट्राई हो सके उतना कांटेक्ट कर, और उनको बोलना कि हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है करके। ठीक है। ये देख तेरे ग्रुप वाले लोगों का नाम, रुक मैं तुझे पहले मैं यहाँ पे ना ये कर देती हूँ।
चाहिए तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रख तू और उनको बोलना कि मैम ने ग्रुप फॉर्म किया है। टॉपिक क्या लग रहा है वसीम, कौन सा लेगा, कौन सा इजी लगेगा? देखते क्या लेते हैं, आप ही जो दे दो, आपको जो पसंद है। म्यूचुअल फंड वगैरह तो रहने दो, ये तो ये ले लिया। मतलब सिंपल वाला टॉपिक में क्या बता सकती हूँ जहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। ये बैंकिंग एम्यूजमेंट के बारे में लोगे आप? बैंकिंग एम्यूजमेंट मतलब क्या रहता है कि अगर हमें कहीं पे बैंकिंग का सर्विसेज पसंद नहीं आए तो हमें कुछ कंप्लेंट्स वगैरह करना है तो उसके वो टॉपिक के ऊपर आप ले सकते हो, वैसे चलेगा? या फिर आप चलेगा। या फिर एक काम करो, अदरवाइज ऐसा वाला रोल ऑफ आईटी लिया है ना, तो आप न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, ये तो आईटी में आ जाएगा। क्या ले सकते हो और इजी वाला? इंश्योरेंस के ऊपर कुछ नहीं, इंश्योरेंस हम लोग का नेक्स्ट में है, इंश्योरेंस अभी मत करो, इंश्योरेंस हम लोग को नेक्स्ट में करना पड़ेगा। कोई स्कीम, नर्सिंग होम कमिटी वगैरह, क्या बोल रहे हो? मतलब ऐसा देखो, अदरवाइज थोड़ा सा ढूंढो तुम और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता दो कि मैम मुझे ये चलेगा करके ऐसा। ठीक है। ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन तू हर एक के लिए है, ठीक ठीक बोल रहा है, लेकिन तुझे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना गूगल पे भी। ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से ऑनलाइन मोड रहते हैं? जीपे के बारे में बता, एनईएफटी के बारे में बता, ऐसा कुछ ये चलेगा? चलेगा मैम। ये हाँ ठीक है ना? हाँ लिख दो फिर ये वाला। हाँ। हाँ ये वाला लियो फिर, ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो तू मुझे सब बताएगा कौन से ऐप है, क्या करना पड़ता है उसमें, वो सब बताएगा। और हाँ। अच्छे से पीपीटी बनाना कि वो पूरे ऐप का तू वहाँ पे जो लोगो रहता है उनका, जो फोटोज रहते हैं वो सब तो अच्छा दिखेगा। ठीक है? ठीक है। हाँ ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर। आई थिंक नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं बाद में, बिकॉज अभी ना टाइम तो लेस देन 1 मिनट है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम हम लोग के ग्रुप का टॉपिक डिस्कस हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग, लेकिन ये उसने ले लिया ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन, वो चला गया फिर अभी। ऑनलाइन बैंकिंग हैज गॉन, कोई और